Cool, awesome. तो एक काम करते हैं अभी ना, let's divide our conversation into two parts. One is YouTube algorithm, one is Insta algorithm. Now, like you've given like enough case studies and you're like the best person to help everyone understand कि algorithms कैसे काम करते हैं, ठीक है? तो YouTube पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं. टेल मी, तो अभी जैसे YouTube पे कोई एक स्टार्ट कर रहा है कंटेंट बनाना, तो उसके लिए लाइक व्हाट एडवाइस डू यू हैव फ्रॉम स्क्रैच कि ओके अभी आप चालू कर रहे हो यूट्यूब पे कंटेंट करना, तो एक पूरा प्रोसेस कैसे होना चाहिए और हर एक प्रोसेस में लाइक आई वांट टू नाउ आइडेंटिफाई कि एक एक प्रोसेस को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, राइट फ्रॉम मतलब आइडिएशन टू स्क्रिप्टिंग टू अपलोडिंग में भी लाइक काफी चीजें होती है, चैनल टैग्स, वीडियो टैग्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, तो हर एक पे टाइम स्पेंड करना है. दिस विल बी अ डिटेल्ड सेगमेंट. आई होप यू आर ओके. आई एम फाइन विद इट. ठीक है, तो एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं. सो यू आर एडवाइजिंग अ यूट्यूब क्रिएटर इन देयर जर्नी, तो वन बाय वन लाइक स्टार्टिंग से कैसे होगा एंड क्या करना चाहिए. ठीक है. सो द फंडामेंटल क्वेश्चन इज दैट if a YouTuber is starting right now or if someone wants to start, what should they do, right? The chronology of events. अब मेरे को फिर से गाली दोगे, but I start with my fundamental question. So if someone wants to start a YouTube channel in 2025, the first question you need to address is why are you doing it? Right? Very, very important. What could be your purpose? I'll tell you what not to do. क्योंकि what should you do ये तो बहुत ही broad question है. What not to do is very important. One, don't do it because you want to make money. आपसे नहीं होगा, आप छोड़ दोगे. Number two, don't do it because you have FOMO. वो कर रहा है मैं करूंगा, आपसे नहीं होगा, आप छोड़ दोगे. Number three, don't do if you're not ready to give 1 year of your time, effort and maybe some money without a single expectation. Don't do it. Number four, don't do it because you want to look cool, because now everybody is making content. It's not as cool as it used to be five years back. Number five, don't do it if you don't have a vision. Now, what could be possible visions, right? I want to make content that makes parents better in their journey of parenting, right? I want to make content like in your case that will help, let's say, CA students expediting their journey towards success. This is a mission statement. So first one is that. Now, assuming that your vision statement is sorted, your niche is sorted, and I'd say spend a lot of time there. A lot of people ask me, and if you allow me to go a bit more in depth, a lot of people ask me, how do I find a niche for my content? That's a primary question. कि बॉस ये तो ज्ञान दे दिया, but करें क्या? What's the actionable out there? I have a very interesting. I said this previously. Also, I'll repeat it. So, this very interesting thing. I say that how do you find what's your niche in social media? I say that suppose it's a day, it's a fucked up day, right? आप सुबह उठ रहे हो, आप सुबह 7 बजे उठे, आपको ऑफिस जाना है, आपको ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, आप सुबह उठ के आपको भूख लगी है, आपने देखा आपकी कुक नहीं आई, आप खाने में क्या खाओगे, और लाइक फक्ड अप बॉस, ऐसे ही लेट हो रहा है, मेड नहीं आई, क्या करूं मैं. आपने जैसे तैसे कुछ मैगी वैगी बनाई, कुछ ऐसा वो करा, आप रास्ते में गए, आप मेट्रो से जाते हो, बारिश हो रही है, ऑटो नहीं मिल रहा, मेट्रो में जा रहे हो, मेट्रो कार्ड घर पे भूल गई हो, फक्ड अप. ऑफिस में जा रहे हो, आपका बॉस आपको बोल रहा है यार मतलब काम नहीं करा, 4 गालियां दे दी, फक्ड अप अगेन. आप वापस आ रहे हो सेम, क्योंकि मेट्रो कार्ड तो है नहीं, रात हो रही है, आप थक रहे हो, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो रखा है, and you're tired as hell. It's the worst day you can imagine. आपके साथ हुआ है क्या ये सब? हुआ ही होगा कभी, मैं बुरे दिन याद नहीं रखता. It's the worst day you can imagine, and it's 11 PM at night. What's that one subject that you can still talk about with utmost energy? That's your niche. That's your only niche. क्योंकि अगर आप इतने बुरे दिन के बाद भी उस पे ऐसे आंखें चमका के बात कर सकते हो ना, तो that's your passion, that's your purpose, that should be vision. So that's one. You have found your niche. Now, step 2. Now that you have found your niche, go on and do something that I refer as pattern recognition. Pattern recognition is the single biggest skill that every content creator should have. Why? I believe that humans run on patterns. वो कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. उसका क्या मतलब है? हिस्ट्री रिपीट क्यों करेगी खुद को? क्योंकि ह्यूमन का पैटर्न है. मतलब आज अगर
एक बॉम्बे के स्कूल के क्लासरूम को पकड़ लो, चाहे एक बिहार झारखंड के स्कूल के क्लासरूम को पकड़ लो, 50 बच्चे वही कॉमन ट्रेट्स होंगे। एक बैक बेंचर होगा जिसके कॉमन ट्रेट्स होंगे, एक फ्रंट बेंचर होगा जिसके कॉमन ट्रेट्स होंगे, एक कपल होगा जिनके बीच में से वो ऐसे प्यारा सा रोमांस चलता होगा। ह्यूमन की खास बात ये है ना कि वो पैटर्न्स पे चलते हैं। आपकी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम सिमिलर होंगी। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है, लोग समझते नहीं है। सी वीडियोस का मतलब क्या होता है? मैं वीडियोस बना रहा हूं, आप वीडियो बना रहे हो, आप ये पॉडकास्ट क्यों कर रहे हो? बिकॉज एसेंशियली समवेयर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ समवन हु वांट्स टू start making content, right? So this video is essentially a solution to that problem. So if your videos are solutions to problems and humans run on patterns, there must be a pattern of problem that humans face. So the second step is go and identify those patterns. कि आपके niche में लोगों के क्या patterns हैं, और हर नीश में ना कुछ पैटर्न होता है ना? Give example. जैसे मान लो आपकी नीश पकड़ लो, आप सीए बीए के अराउंड कंटेंट करते हो, सीए में वही एग्जाम आ रहे हैं, 3 महीने का रोड मैप बता दो, 3 महीने का टाइम टेबल बता दो, सीए नहीं निकला तो ड्रॉप करें, क्या करें, ये बिग 4 होता है, राइट? बिग 4 में आर्टिकलशिप कब क्या रेज्यूमे बनता है, वही 5 बातें, क्योंकि हर साल लोगों के सेम पैटर्न्स है। सेम इज विथ इट, राइट? आप यूपीएससी में जाओ, मैं अगर एजुकेशन यूपीएससी में जाऊं, वही सेम चीज है। मैं so let's say if I pick CA category, I identify these patterns, I extract first principles out of those patterns, which is like timetables and all. These are first principles. Apply this to any education category, be it UPSC, be it SSC, be it coding, be it anything. It would apply the same thing. यूपीएससी एग्जाम में 3 महीने पहले उनको भी टाइम टेबल चाहिए, इंजीनियरिंग एग्जाम में 3 महीने पहले उनको भी टाइम टेबल चाहिए, एसएससी एग्जाम में 3 महीने पहले उनको भी टाइम टेबल चाहिए। दिस इज पैटर्न रिकग्निशन। सिमिलरली मैं और एजुकेशन से हट के होता हूँ। हेल्थ का मैंने आपको बताया प्रशांत के केस में, आप पेरेंट्स के आप बच्चों के ऊपर कंटेंट बनाओ, चलेगा ही चलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया के पेरेंट्स का सेम ही प्रॉब्लम है, बच्चा खाना नहीं खाता, क्या करें? तो हमारे so we have a client, Ravi Malik. We scaled a he's a pediatrician, right? So we scaled a doctor who is a pediatrician, his account from 0 followers to 100K in like 8 months, just by identifying the right patterns. क्या patterns हैं? बच्चा खाना नहीं खाता, कंटेंट बनाओ, पेरेंट्स को देखना है। बच्चे को वॉकर देना है कि नहीं देना है, पेरेंट्स देखेंगे। बच्चों को पनिशमेंट क्या दें, बच्चे देखेंगे, पेरेंट्स देखेंगे। बच्चे के लिए स्कूल कैसे चूज करें, पेरेंट्स देखेंगे। हमने पेरेंटिंग की और पीडियाट्रिक्स की हर वो पॉसिबल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करा वाया जो हमारा बेंच का अपना जो भी अपना एक प्रोसेस है, एंड वी मेड कंटेंट, द अकाउंट स्केल्ड लाइक एनीथिंग, राइट? तो सेकंड स्टेप इज टू आइडेंटिफाई दोस पैटर्न्स, और वो पैटर्न्स आपको हर नीश में मिल जाएंगे। वीडियो एडिटिंग पकड़ लेते हैं ना, क्या पैटर्न है, इस क्रिएटर के जैसा इफेक्ट कैसे बनाए, उस क्रिएटर के जैसा इफेक्ट कैसे बनाए, राइट? मिस्टर बीस्ट की जैसी एडिटिंग कैसे करें, सबको देखना है, पैटर्न है। आप कुछ ही पकड़ लो, आप लेट्स से रणवीर का बियर बाइसेप पकड़ लो, राइट? पॉडकास्ट पे क्या चलता है, आप भूत प्रेत की बातें करो, चलता है, पैटर्न है। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई दोस पैटर्न्स, राइट? दैट्स point number 3. Now once you've identified those patterns, go and find the first video ideas. Now how do you find a video ideas? And you have to spend insane amount of time on those video ideas. Video ideas are essentially a consequence of the patterns you identify. आपको पैटर्न से पता चल क्या है, your first few videos should be based on your patterns. So आपको video idea मिल गया. Number 4, and this is the mistake that most people make. Think of your thumbnail and title. Don't go into scripting yet. Most people, लोग क्या करते हैं, पूरी वीडियो कर दी, 3 बजे अपलोड है, 2:30 बजे थंबनेल वाले को फोन लगाएंगे, भाई थंबनेल बना दोगे क्या? वो बोल रहा है भैया आधा घंटा बचा है, कह रहा भाई यार गलती हो गई, अभी बना दो। इंडियन क्रिएटर्स की प्रॉब्लम क्या है ना, वो थंबनेल पे फोकस ही नहीं करते। उनको लगता है कि लास्ट के आधे घंटे में ही बनेगा, राइट? टाइटल लास्ट के आधे घंटे में ही सोचेंगे। वो बेचारा थंबनेल डिजाइनर परेशान हो रहा है, फोटो दे दो यार अपने, अरे यार वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लो यार, हॉरिबल, रॉन्ग। A lot of videos get killed and they could be great videos. A lot of great videos get killed just because they did not have the right thumbnails. Simple सी बात बताता हूं, if you are not making thumbnails
Before you are scripting your videos, you are wasting your efforts. आप सोचो ना यार, आपको भूख लगी, आप रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, आप देख रहे हो यार कहाँ खाना खाऊं, क्या करूं, आपको रास्ते में दिख रहा है एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट, ठीक है, वो ना रेस्टोरेंट अंदर से बहुत अच्छा है, बेस्ट खाना है, बेस्ट इंटीरियर्स है, लेकिन बाहर से उसका जो गेट है एंट्रेंस बहुत ही टूटा फूटा सा है. Would you go to that restaurant? You wouldn't, because the entrance is bad. That's the same thing. If your thumbnail is bad, आपकी वीडियो कितनी भी अच्छा हो, I don't care. So first make your thumbnail. At least think about it. Think about the concept. Think about the title. Now, once you have thought about the thumbnail and title, or even made it, now go on to the scripting part. When you go to the scripting part, the baseline is make sure that your script delivers what is being promised in the thumbnail, which is another reason why you should make thumbnail before scripting. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.